Welcome back, dear students. Welcome to our course on environmental engineering and the initiative Let's Crack the Gate. I'm your course instructor Dhruv Saxena, and for those who have joined us with this lecture, firstly, I would like to request all of you to subscribe to our channel and also watch the previous lectures before starting this one. Let us start with our topics for today. The first topic is our next chemical water quality parameter, that is gases. In the previous lectures, we learnt about various other major important chemical water quality parameters, and in the last lecture we focused upon chlorides, nitrogen contents, various forms of nitrogen. Then we also discussed about the metals. What is the impact of various important metals, and how do they, what are the some of the acceptable limits. Okay, so let us have a small discussion about gases. What are some of the major gases? Some of the major gases are namely methane, hydrogen sulfide, ammonia, carbon dioxide, and oxygen. Now, these four are mainly due to presence of organic matter, or maybe due to some sort of pollution. Okay, and also because of interaction with atmosphere. Okay, and oxygen, it is a very vital gas for any of the living being. The presence of oxygen in raw water indicates that there is no organic matter, because if there would have been any organic matter, it would have been the oxygen would have been consumed either in decomposition or either in its processes. Okay, so let us also write about it that the presence indicates absence of organic matter. Let us discuss these gases, their impacts one by one. Okay, we are solely sticking to the only points that are important for a GATE aspirant as well as one who is aspiring for some competitive exams. Okay, so about methane, we all know that it has a very explosive tendency. So if it is it happens that it is collected in a small packet, or it gets collected, or it gets accumulated in some specific regions, then it might create explosions in the water distribution system. Secondly, it also indicates that there has been biological activity in the water. Okay, so let us write down these points. Please take out your notebooks. So methane, it is known for its explosive tendency. Explosive tendency. Next, presence of methane. Presence of methane indicates indicates the biological activity in water. Indicates the biological activity in water. Next, we have carbon dioxide. Now, carbon dioxide, firstly, it induces bad taste in our water. It also happens to be corrosive in nature, and it corrodes the metal surfaces as well as various pipes or made of metal that are used in distribution network. Secondly, CO2 also indicates presence of organic matter in water. Okay, so these are some important points. Let us write these down. Carbon dioxide in water induces bad taste, induces bad taste
and makes it corrosive and makes it corrosive. Next point we have is that presence of carbon dioxide in water indicates presence of organic matter. Indicates presence of organic matter. Next gas we have is hydrogen sulfide. From the school times, we know that hydrogen sulfide is the gas which has a rotten egg-like or a very pungent smell. Okay, so this is one of the things that it causes a lot of smell in the water. Second is that presence of this hydrogen sulfide also indicates that there has been biological decomposition of organic matter in water. So these are some important points regarding hydrogen sulfides. Let us write down. So hydrogen sulfide gives rotten egg like or pungent smell. Next, presence of H2S. Presence of H2S indicates biological decomposition. Biological decomposition of organic matter in water. Of organic matter in water. Okay, next gas we have is oxygen. Now some important points, new points for you with regards to oxygen is a new term which is known as saturation dissolved oxygen or saturation levels for dissolved oxygen. We all know that these gases are present in dissolved forms, and oxygen being an important gas, we have to understand various aspects related to it. First of all is this saturation dissolved oxygen term. What does it indicate? It indicates that for any given temperature, what will be the maximum capacity of oxygen that might be possible in that particular water. Okay, so just for example, at 20 degrees, the saturation levels are around 9.2 milligrams per liter. Now, in the various sources of raw water, we also know that aquatic and plant and both animal life survive there. So, oxygen is required for them also, especially if we talk about fishes. So, a minimum of 4 milligram per liter or 4 ppm of oxygen is required for survival of fishes in water. So, we have to we will be using this fact in upcoming lectures during our study on water treatment. So for now, let us write down these points. First of all, oxygen, that maximum oxygen which may be present in water, maximum oxygen which may be present in water at any temperature, at any temperature is referred as saturation dissolved oxygen. Saturation dissolved oxygen level. Okay, write down in bracket that at 20 degrees centigrade
the value of saturation dissolved oxygen, we can write it in this way, or we can also write it as DOS. It stands for saturated oxygen or saturation or dissolved oxygen levels. So it is 9.2 milligrams per liter. Next point we have is that minimum oxygen to be present in water at any given temperature for survival of fishes is 4 milligram per liter. Okay. Next important point with regards to oxygen is how do we quantify that what is the value of dissolved oxygen in water. So for that we use a method known as Winkler's method. It is a titration process in which we try to find out the value of dissolved oxygen in the given water. So let us write down O2 is determined using Winkler's method. Now what is Winkler's method? Let's have a look. So what is Winkler's method? We take the water sample, we add magnesium sulfate into it with a combination of sodium hydroxide and potassium iodide. Now there might be only two cases possible, that either the oxygen is present in the water or it is not present. So in the case the water doesn't contain any amount of oxygen, then we get a white precipitate of magnesium hydroxide. Okay, that is white, and as we get the precipitate, it is clear that oxygen is absent. So there is no need to quantify anything. Next is the case when there might be possible oxygen there and we don't get a white precipitate. Instead, we get a red-brown precipitate of manganese oxide. So in that case, we will proceed it for a titration process. Let us see how do we titrate it. What are the titrants and how do we do it? Okay, so let's divide it into two cases. The first case is that if dissolved oxygen is absent, so let us take the water sample. Let us add magnesium sulfate plus combination of sodium hydroxide and potassium iodide. So this gives us a precipitate of magnesium hydroxide, which is white in color. Okay, and second case will be that dissolved oxygen is present. If DO is present. So again, let us take water sample. Now there will be a need to titrate it with a titrant and find out the amount of titrant used to quantify the value of dissolved oxygen. How will we be detecting presence of oxygen? It will be by the precipitate of manganese oxide, which is red brown in color. Okay, now what is done next? We see that we add H2SO4 in this precipitate. Okay, why is H2SO4 added?
it is added firstly to reduce pH. And why it is required? The pH is reduced so that the oxidation state of iodine is changed. To change the oxidation state of iodine. Okay. Now this changed changed state of iodine will now react with available iodine, and it will form a iodine ion I3 minus, which we also say as a blue colored iodine complex solution. So we get a blue colored iodine complex solution. Now we use this solution with for titration purposes, and we use 0.01 normal Na2S2O3 as a titrant. Okay, this iodine complex is titrated with this 0.01 normal Na2S2O3. Now whatever the volume in ml of this titrant is used, to decolorize this blue colored complex solution is noted, and with the help of this volume we calculate the value of dissolved oxygen in the water sample. Okay, so volume in ml of this 0.01 normal Na2S2O3 is noted, which is required to decolorize the iodine complex. Okay, so that's how the Winkler method work. Okay, now let us move on to the next important water quality parameters, that are biological water quality parameters. Now in this topic, briefly what we will be studying what are the various effects of different type of microorganisms, organic matter in water. Then how do we quantify the amount of these microorganisms present in the water? What are different processes involved? And then eventually we will be moving to our next module, that is water treatment. Okay, so let us discuss firstly about organic matter and microorganisms. Okay, now these organic matter, they might be of two types. Organic matter might be of two types. Listen to my words very carefully. Write it down later. I will write it for you. You can then copy it. So organic matter is of two types. One can be biodegradable. Second is non-biodegradable. जैसा कि नाम बता रहा है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो है जो कि इस प्रोसेस से डिग्रेड ना हो पाए, डिकम्पोज ना हो पाए. ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अपने पास अलग अलग तरीके के होते हैं. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एरोबिक प्रोसेस से डिकम्पोजिशन करेगा ऑर्गेनिक मैटर का, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक प्रोसेस से डिकम्पोजिशन करेगा. एरोबिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन यूज करते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए. तो ये जो एरोबिक प्रोसेस होते हैं ये काफी हाई रेट ऑफ रिएक्शन होती है इनकी. अगर कंपेयर करें एनएरोबिक से तो अराउंड 3 टाइम्स फास्टर होते हैं ये. तो अगर ऑक्सीजन मिल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एरोबिक वाले, तो आपका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा एंड जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे दे विल बी स्टेबल. प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं? सच एज कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट एक्सेट्रा. ओके,
वहीं एनएरोबिक प्रोसेस में क्या होता है, जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को ऑब्जर्व करने को मिलता है दैट इज लो। सेकेंडली, जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, दे आर अनस्टेबल इन नेचर। प्रोडक्ट्स वी गेट आर इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, एल्कोहल्स एंड गैसेस। ओके, सो ये तो हो गई कुछ बातें ऑर्गेनिक मैटर की। तो एक बार पहले इन सारे पॉइंट्स को अपन जॉट डाउन कर लेते हैं अपने नोट्स में। जब भी आप रिवाइज करेंगे, बहुत ही इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं कि क्या मेजर पॉइंट्स हैं इनके, जिससे आप कभी कोई इश्यू में ना फंसे, सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएं। चलिए, सो पहला पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनिक्स इन वाटर। ऑर्गेनिक्स इन वाटर में either be biodegradable, may either be biodegradable or non-biodegradable, or non-biodegradable. Biodegradable organic matter biodegradable organic matter is that which can be decomposed, which can be decomposed by action of microorganisms, which can be decomposed by action of microorganisms, either in presence of oxygen or in absence of oxygen, either in presence of oxygen or absence of oxygen. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if decomposition takes place, if decomposition takes place in presence of oxygen, if decomposition takes place in presence of oxygen, it is referred as aerobic process. It is referred as aerobic process and is being carried out by aerobic microorganisms. Next point about end products. So end product of aerobic process, end product of aerobic process are highly stable, like carbonate, nitrate, sulfates, phosphates, etc. And these processes are faster than anaerobic process. These processes are faster than anaerobic process. ब्रैकेट में लिख लीजिए अबाउट 3 times. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एनारोबिक प्रोसेस के बारे में. इफ
the decomposition, if the decomposition takes place in absence of oxygen, in absence of oxygen, it is referred as, it is referred as an aerobic process. It is referred as an aerobic process and is carried out by, and is carried out by anaerobic microorganisms. ओके, एंड प्रोडक्ट्स के बारे में लिख लीजिए. एंड प्रोडक्ट्स कैसे थे, स्टेबल या अनस्टेबल एनारोबिक प्रोसेस के? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक प्रोसेस are highly unstable such as acids, alcohols, gases. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस. अब इसके बारे में एक पॉइंट, क्या बेस पॉइंट है कि क्यों ये प्रोसेस स्लो होता है. कुछ जनों के डाउट आएगा कि एनारोबिक प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस से स्लो क्यों होता है. सो इसका रीजन ये है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं. और आपको दूसरे वर्ड्स में बताऊं कि जैसे आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए, दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, दे वर्क विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओनली. ठीक है. अब एरोबिक प्रोसेस में डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से मिल जा रही है, एनएरोबिक प्रोसेस में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, बट वो एटमॉस्फेयर से नहीं आती है. जो ये एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलरली बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, ये उसको पहले ब्रेक करते हैं, उसके बाद में उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एंड फिर आगे रिएक्शन करते हैं. तो इट इज अ टाइम एंड एनर्जी कंजम्पटिव प्रोसेस एंड हेंस ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस. ओके, सो इन पॉइंट को भी ऐड कर लेते हैं. इन दिस प्रोसेस microorganism utilizes molecular bonded oxygen, which is both time and energy consumptive process, which is both time and energy consumptive process. Hence, the rate is comparatively slower. Rate is comparatively slower than aerobic process. Rate is comparatively slower than aerobic process. ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए कि एक कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एरोबिक बिहेवियर भी शो करते हैं और एनएरोबिक कंडीशंस में भी अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं. इन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अपन ने एक अलग नाम दे रखा है, इनको अपन बोलते हैं फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एक बार इसका भी आप स्टार लगा के एक नोट ले लीजिए. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, there are certain type of
microorganisms which act in presence and absence, which act both in presence and absence of oxygen. ठीक है. These are referred as these are referred as facultative. These are referred as facultative microorganisms. These are referred as facultative microorganisms. Now next point, अगर अपन बात करें कि कौन से कंपाउंड्स में और ज्यादा टाइम लगता है, कौन से जल्दी हो जाते हैं, सो जो एलिफैटिक चेन्स होती हैं दे आर डिकम्पोज फास्टर देन एरोमेटिक चेन. एलिफैटिक चेन कैसी होती है आपकी, कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा. ओके, ये आपके कार्बन एटम्स हैं एंड इससे जो भी अलग बॉन्ड्स हैं, जो भी कंपाउंड बन रहा है, ये एलिफैटिक हो जाते हैं. एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें आपकी रिंग्स बनती हैं, तो दे आर एरोमेटिक. इस पे आपका जो भी कंपाउंड बन रहा है, सो जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं दे आर इजियर टू ब्रेक एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए. एलिफैटिक कंपाउंड्स decompose easily in comparison with aromatic compounds. Okay. नेक्स्ट अपन कुछ उन ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. अब इनका भी डिकम्पोजिशन होता है, अपन इसलिए इनको कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं डिकम्पोज होने में. इनका प्रोसेस बाकी सबसे रिलेटिवली बहुत स्लो होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि टैनिक एसिड, फिनॉल, आपका सिग्निक एसिड, देन आपका ये हो गया ह्यूमिक एसिड. ठीक है, so they take a lot of time and they also eventually get decomposed, but we keep it into the category of biologic not decomposable via these method, that is non biodegradable. So इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट लिख लीजिए that non biodegradable organic matter is that which cannot be decomposed, or which requires comparatively longer time in decomposition, which requires comparatively longer time in decomposition by the action of microorganisms. By the action of microorganisms.
एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक ह्यूमिक एसिड, सिग्निक एसिड, देन आपका हो गया टेनिक एसिड एंड फिनॉल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन हुआ ऑर्गेनिक मैटर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पैथोजेंस। क्या होते हैं ये पैथोजेंस, कैसे क्वांटिफाई करते हैं इनको। सो पैथोजेंस आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में जब चेक करते हैं रॉ वाटर सैंपल को, तो पैथोजेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, इधर दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, कॉजिंग डिजीजेस, so बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या है पैथोजेंस के साथ में, कि इनको डायरेक्टली क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेथड्स हैं बट डायरेक्टली क्वांटिफाई अपन नहीं करते क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी रिलेट इट विथ समथिंग डिफरेंट। किससे रिलेट करते हैं, कॉलीफॉर्म से। ओके, कॉलीफॉर्म्स क्या होते हैं, कॉलीफॉर्म्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट वो पैथोजेंस की तरह हार्मफुल नहीं होते हैं। बट कॉलीफॉर्म से रिलेट करने का क्या फायदा है कि कॉलीफॉर्म्स तभी होते हैं जब पैथोजेंस वहां पे होते हैं। तो अपन कॉलीफॉर्म्स की जो कॉलोनीज बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनका नंबर काउंट कर सकते हैं या उनके बेसिस पे अपन टेस्ट कर सकते हैं, और उससे अपन को रिलेट कर सकते हैं कि पैथोजेंस की क्वांटिटी कितनी है उस रॉ वाटर सैंपल में या कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इस पॉइंट्स को एक बार लिख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अपन सीधे टेस्ट देखेंगे कि कैसे पैथोजेंस को क्वांटिफाई किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं और गेट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज the most important the most important type of microorganisms that are capable of that are capable of transmitting diseases in water are referred as pathogens. Okay. Next, testing and counting. नेक्स्ट का आप पॉइंट लिखिए, टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस कैन बी डन इन लैब but with great great difficulty, and the tests involved are very costly. सो इन दोनों कारणों की वजह से अपन इन पे डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन का टेस्ट नहीं करते हैं, अपन कॉलीफॉर्म्स का टेस्ट कर लेते हैं और वो इनडायरेक्टली अपने को जो है पैथोजेंस की क्वांटिटी के बारे में बता देता है कि कितने पैथोजेंस हैं। तो इसी में ऐड कर लीजिए, हेंस instead of finding presence hence instead of finding presence of pathogens, it is being tested
for coliforms, coliforms, which themselves are harmless, which themselves are harmless microorganisms, but their presence or absence indicates presence or absence of pathogens, indicates presence or absence of pathogens as they survive for longer duration than pathogens. For the same given conditions. ठीक है। नाउ किस तरीके कॉलीफॉर्म्स यूज करते हैं अपन, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो कॉलीफॉर्म्स लाइक E. coli एंड B. coli, ये कॉलीफॉर्म्स के नाम हैं, टाइप्स हैं। सो ये जो कॉलीफॉर्म्स हैं E. coli और B. coli, ये जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि अपन भी हो गए, अपन वार्म ब्लडेड है, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनकी इंटेस्टाइन्स होती हैं इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। कॉलीफॉर्म्स लाइक E. coli एंड B. coli आर प्रेजेंट इन द intestines of all warm-blooded animals ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अब डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी टेस्टिंग ऑफ coliforms. How do we find out the concentration of pathogens indirectly? By measuring the amount of coliforms present. Okay? So जो सबसे पहली टेक्निक अपने पास है, इट इज MFT टेक्निक और मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। लिखिए मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। सो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, एक स्टेराइल मेम्ब्रेन ले रहे हैं। मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा डिपिक्ट करने का हूं। ये अपना एक सैंपल है वाटर का, जिसमें आपके पैथोजेंस हैं, ठीक है। इसी में आपके कॉलीफॉर्म्स भी हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड कलर है जिनका, ये आपके कॉलीफॉर्म्स हो गए। अब ये जो कॉलीफॉर्म्स हैं, इनको अपन एक स्टेराइल मेम्ब्रेन लेयर पे लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं एक स्टेराइल मेम्ब्रेन लेयर पे, जिसके वॉइड्स कुछ होते हैं 5 से 10 माइक्रोमीटर के।
बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन भी होती है और बहुत पतले वॉइड होते हैं इसमें, 5 से 10 माइक्रोमीटर के। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब एक बार अपन इनको इस पे ले आए तो अपन एक सेट टेम्परेचर पे, अराउंड 20 डिग्रीज के टेम्परेचर पे इनको इंक्यूबेट करते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे ये अपनी कॉलोनीज ग्रो करें वहां पे, और इसको इंक्यूबेटर में डाला जाता है। इंक्यूबेटर क्या होता है? एक अपैरेटस जिसमें आप जो टेम्परेचर और मॉइस्चर सेटिंग्स है वो आप कंट्रोल कर सकें। सो यहाँ पे एक इंक्यूबेटर यूज कर रहे हैं अपन, जिसको टेम्परेचर अपन ने सेट कर लिया अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 20 घंटे के लिए अपन इंक्यूबेट करते हैं इसको, स्टेराइल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अपन इस मेम्ब्रेन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस पे अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म हो जाती हैं। किसकी फॉर्म? कॉलोनीज, कॉलीफॉर्म की कॉलोनीज। नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करनी है? थ्रू द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप वी count the number of coliform colonies that are formed in 20 hours at a temperature of 35 degrees on this sterile membrane. तो इससे अपन कोरिलेट कर लेते हैं कि what will be the concentration of pathogen in raw water sample. सिंपल, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं प्लीज। So in this test, water sample is passed through a sterile membrane which retains the microorganisms present that are further brought in contact with nutrients of coliform under controlled temperature conditions for 20 hours. Okay, आफ्टर इंक्यूबेशन जब भी 20 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में अपन निकाल के काउंट करते हैं कि फैमिलीज कितनी डेवलप हुई। सो आफ्टर इंक्यूबेशन द नंबर ऑफ कॉलोनीज of these coliforms are counted that are further related with pathogens ओके। लिख लीजिए इस पॉइंट को, आई होप लिख लिया होगा। नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। इट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर्ड मेथड। इसका शॉर्ट फॉर्म से ही जनरली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। एमपीएन मेथड यूज करके आप आंसर बताइए कि कितना पैथोजेंस की क्वांटिटी होगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गेट
के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन बहुत सारे सैंपल्स बनाते हैं, अलग 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 सैंपल्स अपन बना रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर डाइल्यूशन रेशियोज। क्या मतलब है इसका? वाटर सैंपल लिया, उसको डाइल्यूट किया प्योर वाटर से जिसमें कोई पैथोजेंस नहीं थे, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब लेटस से मैंने 1 ml लिया सैंपल, उसको मैंने 10 ml या 9 ml पानी के साथ में डाइल्यूट करके 10 ml का एक डाइल्यूटेड सैंपल बनाया। वही 1 ml लिया, उसको मैंने अब 99 ml के साथ कंबाइन करके एक 100 ml का डाइल्यूशन सैंपल बनाया। अब मैं इस डाइल्यूशन रेशियोज के 3-3 सैंपल बना सकता हूं या 5-5 सैंपल बना लिए। इसके अंदर मैं ऐड करता हूं न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? इन कॉलीफॉर्म्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स कौन से ऐड किए जाते हैं? लैक्टोस ब्रोथ, बेसिकली शुगर सॉल्यूशन। अगर सिंपल वर्ड से बोलूं, शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट यही रहता है। तो ये लैक्टोस ब्रोथ ऐड करते हैं या शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ये कॉलीफॉर्म्स को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, एंड फिर अपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्यूबेट कर देते हैं इसको वापस से, सारी टेस्ट ट्यूब्स को, जितने भी आपने सैंपल्स बनाए हैं। अब इन सारे सैंपल्स को अपन इंक्यूबेट कर लिया, फिर जब भी अपन ने इनको खोल के देखा आफ्टर 48 आवर्स, 2 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने सैंपल्स में कॉलीफॉर्म की ग्रोथ हुई, कितने सैंपल में वो जो ऑर्गेनिक मैटर था वो कंज्यूम हो गया। इसका पता कैसे चलता है? जैसे लेटस से मैंने 5 टेस्ट ट्यूब बनाई थी, इसमें डाइल्यूशन था 1 ml प्लस 9। अब ये आप लिखिएगा मत, मैं आपको लिखवाऊंगा अच्छे से, डायग्राम भी बनाऊंगा, ये बस समझाने के लिए कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने इनिशियल, मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब थी 100 ml की ईच, ठीक है, ये मेरा डाइल्यूशन रेशियो था। ये प्योर वाटर है, ये जो वाटर सैंपल है वो है। अब इसको मैंने इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया, इसमें मैंने शुगर सॉल्यूशन सब में डाल दिया, लैक्टोज ब्रोथ सब में डाल दिया, जिससे इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे कॉलीफॉर्म्स को ग्रो होने के लिए। अब एक दिन बाद देखने को मिलता है मेरे को कि जो ये सारे सैंपल्स थे, इसमें लेटस से 3 में कलर चेंज हो गया, ये सबसे सिंपल मेथड होता है, एंड 2 में जो पानी था वो वैसा ही है, ठीक है। कलर मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया तो मैं वापस से करेक्ट कर लेता हूँ। 2 में जो पानी है वैसा ही है, और 3 में आपका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो अब जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 सैंपल्स में कॉलीफॉर्म कॉलोनीज डेवलप होते हुए मिल गई, तो ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी का इंडिकेशन हो गया कि इसमें 3 की प्रोबेबिलिटी है कि 5 सैंपल में से 3 आपके टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब इस तरीके से टेस्ट करने की जरूरत है। जब अपन एमएफटी में तो सिंपली एक मेम्ब्रेन के ऊपर पानी में पास करा के उस पर ले रहे थे। ये एमपीएन टेस्ट तब करा जाता है जब जो कॉलीफॉर्म्स या पैथोजेंस की क्वांटिटी जो वाटर सैंपल में बहुत ही कम होती है। ये जनरली यही मेथड यूज किया जाता है रॉ वाटर सैंपल्स के लिए, क्योंकि वहां पे पैथोजेंस की क्वांटिटी बहुत कम होती है। वहीं अगर अपन सीवेज की बात करें तो वहां पैथोजेंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अपन एमएफटी टेक्निक भी यूज कर ले। तो अब आप समझ गए, ये मैम ने बस इंक्यूबेशन पीरियड और मोस्ट प्रोबेबल नंबर समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। अब मैं इसका एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ कि एमपीएन टेस्ट कैसे होता है। ये डायग्राम मत बनाइए, दिट इज ऑफ नो यूज। अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो बना लीजिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए। सो मैंने क्या किया, अपने इंक्यूबेटर में ये मेरा इंक्यूबेटर है, जिसका टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टाइम पीरियड है इसका ये है 48 आवर्स तक ये अपन टाइम देंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या किया,
मैंने 5-5 सैंपल बना लिए अलग अलग डाइल्यूशन रेशियोज के हिसाब से। ये एक आपने सेट बना लिया, पांच पांच टेस्ट ट्यूब के लिए, सॉरी, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं और 5 आपने टोटल हर डाइल्यूशन रेशियो के लिए टेस्ट ट्यूब्स ले ली। अब पहली टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने 1 ml रॉ वाटर लिया और 9 ml आपने ले लिया प्योर वाटर। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml प्लस 99 ml ले लिए हर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये डाइल्यूशन रेशियो है। और उसके अगली टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूशन रेशियो कुछ इस तरीके से रख लिया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड कर लें तो उस हिसाब से अपन सेट बनाते हैं, इंटू 10 ऐसे डाइल्यूशन रेशियो सेट करते हैं। अब ये आपका हो गया प्रिपेयर टेस्ट ट्यूब्स। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या करनी है, नेक्स्ट आप इन सब में ऐड करेंगे लैक्टोस ब्रोथ, या फिर अपन इसको कह सकते हैं we are supplying nutrients for कॉलीफॉर्म्स। कॉलीफॉर्म्स सरवाइव करेंगे तभी तो कॉलोनीज डेवलप करेंगे, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। अब ये अपन ने भाई न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर दिया, अब 48 आवर्स का वेट करना है, ठीक है। 48 आवर्स हो जाते हैं। अब लेटेस्ट से 48 आवर्स के बाद में अपन ने ये टेस्ट ट्यूब्स बाहर निकाली और अपन ने जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि कलर चेंज हो गया या आपने किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कॉलीफॉर्म्स डेवलप हो गए, तो आपने एक वहां से प्रोबेबल नंबर निकाल लिया। अब लेटेस्ट से इसमें 5 की जो 5 टेस्ट ट्यूब थी दे टेस्टेड पॉजिटिव, उसमें कॉलीफॉर्म डेवलप हो गए। जो सेकेंड सेट था इसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स में कॉलीफॉर्म्स डेवलप हुए, और जो नेक्स्ट सेट है इसमें एक ही टेस्ट ट्यूब में कॉलीफॉर्म डेवलप हुए, बाकी 4 में कोई ना कलर चेंज हुआ ना कुछ हुआ। तो ये आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो ये डाइल्यूशन रेशियोज दिए हुए होंगे, प्लस आपको ये नंबर्स दे रखे होंगे कि ये प्रोबेबल नंबर्स क्या रहे आफ्टर इंक्यूबेटिंग दीज टेस्ट सैंपल्स एट डिफरेंट डाइल्यूशन रेशियोज, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या चीज अवेलेबल होगी एग्जाम में, वो देख लेते हैं एक बार। आपके पास एक टेबल गिवन होगी। जनरली एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर अगर मैं आपको बोलूं तो एक बड़ी सी बुक होती है जिसमें बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जिसमें ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे इसमें 531 है तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कॉलीफॉर्म की कंसेंट्रेशन देखते हैं और उससे कोरिलेट करी हुई वैल्यू दी होती है पैथोजेंस के लिए। बट क्या है कि गेट के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको डेफिनेटली कोई अलग से एनेक्सर वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, कोई टेबल्स नहीं मिलती जैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलती हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, आपको एक छोटी सी टेबल दे देंगे जिसमें कुछ वैल्यूज वो ले लेंगे और उसी में से किसी एक वैल्यू में आंसर भी होगा आपका, ठीक है। इस टेबल में वैल्यू कैसे रहेगी, जैसे आपके डाइल्यूशन रेशियो के हिसाब से। जैसे जो आपका पहला है 10 ml का सैंपल है, नेक्स्ट क्या है आपका 100 ml का है, नेक्स्ट आपका 1000 ml का है, ठीक है। तो यहां पे आपकी वैल्यूज लिखी होंगी बहुत सारी। मैं कुछ वैल्यूज रैंडमली लिख रहा हूं, जैसे 5 5 5, ठीक है। अब नए इसमें इस कॉलम में क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में, इससे अपने को एक जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उससे अपने को एमपीएन नंबर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मिलता है। दिस इज फॉर 100 ml वैल्यू। ये ऐसा चार्ट डेवलप्ड है बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। अपने को बस ये चार्ट यूज करना होता है, ये अपने को डेवलप नहीं करना होता, ठीक है। इसमें से बस ये वैल्यू देख के मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालते हैं, एंड यही आगे कॉलम्स होते हैं जहां पे सारी चीजें गिवन होती हैं कि इसके हिसाब से कॉलीफॉर्म इतने होंगे और पैथोजेंस इतने होंगे, तो उससे अपन क्वांटिफाई करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो आपसे एमपीएन भी पूछता है, एमपीएन नंबर क्या है या डाइल्यूशन रेशियो के हिसाब से क्या है,
क्वेश्चन अपन देख लेंगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी हो आपको ए, नेक्स्ट आपको एक सेट दे रखा हो कि इस डाइल्यूशन रेशियो के हिसाब से 5 4 3, ये आपको एमपीएन की वैल्यू दे देगा बी। नेक्स्ट आपको हो सकता है दे रखा हो 5 3 1, तो ये आपको वैल्यू दे देगा सी। एंड सिमिलरली एक और एक रैंडम सेट ले लेते हैं 3 1 0। आपको करना क्या है, जो ये वैल्यूज गिवन है आपको सीक्वेंशियली मैच करनी है। सीक्वेंशियली याद रखिएगा, इसी डायरेक्शन में आपको मैच करनी है। 5 5 5 नहीं, 5 3 1 नहीं मैच हो रहा, 5 5 ये पहले तीन में मैच हो रहा है 5, अगले में सिर्फ एक में ही 5 3 1 मैच हो रहा है। तो अपने को पता चल गया कि एम्पियन की वैल्यू फॉर 100 ml कितनी है, सी। तो ये अपना एम्पियन नंबर हो गया सी, जो भी नंबर होता है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, बुक में दे रखा हो, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लीजिए, कुछ ये टेबल बना लीजिए और लिख लीजिए ये जो वैल्यूज हैं ये क्या बता रही हैं। ये आपकी बता रही हैं वॉल्यूम ड्यूरिंग टेस्ट, या फिर वॉल्यूम ड्यूरिंग आप लिख लीजिए कैलिब्रेशन, ठीक है। ये वैल्यूज क्या बता रही हैं आपको, ये वैल्यूज बता रही हैं द नंबर ऑफ सैंपल्स, द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका नंबर आ गया। अब आप इससे रिजल्ट ये दे सकते हैं कि जो एमपीएन फॉर 100 ml ऑफ सैंपल इज सी, जो भी सी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। वहीं जो नेक्स्ट वैल्यू है आप निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अपन इसकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में ले पाएंगे। इस क्लास में टाइम बाउंडेशन के कारण अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले इसके बारे में चलिए थोड़ा लिख लेते हैं पॉइंट्स, आज की क्लास फिर एंड करेंगे। प्लीज लिखिए इट इज अ, आई होप ये मेथड क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं इस थोड़े कॉम्प्लेक्स मेथड है ये, इसको समझा सकूं एकदम सिंपल टर्म्स में। स्टिल अगर किसी को भी डाउट रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, तभी आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं स्टार जहां जहां पे लगा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। डोंट मिस आउट ऑन दीज टॉपिक्स। आप मैं यूट्यूब पे मेरे को एक वीडियो मिला था जिसमें लेबोरेटरी टेस्ट करके आपको विजुअलाइज भी कराया था। मैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू यूट्यूब रूल्स रेगुलेशंस, बट आई विल शेयर दैट लिंक फॉर दैट यूट्यूब वीडियो in the description box, as well as I will share it in the telegram group, जो अपना सिविल का टेलीग्राम ग्रुप है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज ज्वाइन कर लो। वहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन, वहां पे आपके डाउट्स आप वहां पुट अप कर सकते हो। बेसिकली इट इज अ स्टूडेंट्स फोरम दैट वी ऑल टेक यू फैकल्टीज हैव क्रिएटेड। सारी ब्रांचेस के लिए, अगर आपके फ्रेंड्स दूसरी ब्रांच के भी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो उनसे भी बोलिए कि टेलीग्राम ग्रुप भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन विल एंड टुडेज क्लास। सो इट इज अ मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, it is a multiple tube fermentation test in which samples of different dilution ratio, in which samples of different dilution ratio are mixed with lactose broth, which act as a nutrient, lactose broth which act as a nutrient
and is incubated at 35 degrees centigrade for 48 hours. Okay. Now during this incubation, coliform reduces lactose broth into acids and CO2. तो जैसे ये एसिड्स फॉर्म होते हैं, कलर दिखाते हैं, अपने जो भी एसिड फॉर्म हो रहे हैं उसका कलर आएगा, सो उससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया। आफ्टर इंक्यूबेशन each sample is tested for presence of acids and CO2, and then referring to standard table corresponding to results they are obtained. Okay. इससे अपन क्या वैल्यू निकाल रहे थे? एमपीएन नंबर निकाल रहे थे फॉर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल इज नोटेड। याद रखिएगा, टेबल से अपन एमपीएन फॉर 100 ml ऑफ सैंपल निकाल रहे थे। न्यूमेरिकल में काफी बार इसी पॉइंट को यूज करके क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर देते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, एमपीएन रिप्रेजेंट्स द microbial density that is or which is most likely to be present in water sample। ठीक है, तो ये आपका एमपीएन टेस्ट हो गया। Okay, so that's all for today's session. Today we discussed some chemical water quality parameters, that is with regards to gases. Then we started our discussion for biological water quality parameters. We learnt about aerobic anaerobic processes, their rate and their product stability. We learnt about pathogens, how they are estimated using two methods we learned today, that is one is MFT, that is membrane filter technique, and one is MPN test, that is most probable number test. In the next session we will be doing some numericals with regards to MPN test, and we will be moving forward with biological water quality parameters and eventually to water treatment processes. Okay, so that's all for today. Have a safe day. Take care of your family. Take care of yourself. Jai Hind. See you in the next one.